خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے علماء کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں نماز جمعہ کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی درخواست پر علماء نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل 12 تا 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مساجد میں صرف متعین لوگ ہی نماز جمعہ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی پرسوں یعنی ہفتے کے دن جو ہماری وفاقی حکومت سے بھی بات ہوئی تھی اور وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں علماء اکرام سے ملاقات کر کے اور جیسے باقی اداروں میں ایک ایس او پی فالو ہوگی، مساجد کے لیے بھی ایک ایس او پی ہم فائنل کریں گے۔ اور صوبائی حکومت نے وزیر اعظم صاحب کو اور میں نے آج سب علماء اکرام کو اس میں پورا یقین دلایا کہ جو بھی ایس او پی فالو ہوگی، جو بھی ایس او پی کہی جائے گی، اس پہ ہم مکمل طور پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں کل جمعہ ہے، اس سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پچھلے 3 جمعہ مبارک میں ایک طریقہ کار رکھا گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ مساجد میں، اور میں نے پولیس کو میں کہہ بھی دیا ہے اور کہہ دوں گا کہ مساجد کے اندر کوئی سختی وغیرہ نہ کریں، لیکن عوام سے یہی اپیل ہے، سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کل ہم دوبارہ 12 بجے سے 3 بجے تک روڈ پہ سب چیز بند کر دیں گے، مساجد کھلی رہیں گی، جو لوگ متعین ہوں مسجد میں وہ نماز ادا کریں، باقی لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ گھروں پہ نماز ادا کریں۔ اور معاشی صورتحال کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک نے کاروباری افراد کے مطالبے پر بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرونا سے متاثر معیشت کی بحالی کے لیے بنیادی شرح سود مزید 2% کم کر کے 9% کر دی گئی ہے۔ شرح سود میں ایک ماہ میں تیسری مرتبہ کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کرونا کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں رواں سال اقتصادی ترقی کی شرح -1.5% ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ معیشت کے تمام شعبوں میں سست روی دیکھی جا رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر مانیٹرنگ کمیٹی کی ہنگامی میٹنگ میں شرح سود 11% سے کم کر کے 9% کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقتصادی ماہرین اور صنعت کاروں کی طرف سے شرح سود میں کمی کو معیشت کے لیے بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے ملکی معیشت پر منفی اثرات کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک ماہ میں تیسری مرتبہ شرح سود کم کی گئی ہے، جس سے مجموعی طور پر شرح سود 4.25% کم ہوئی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی اقدامات اٹھا چکی ہے یہ ہماری اکنامی کی ریوائول کے لیے کافی ہے۔ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہو یا ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو یا سیل ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے ہو یا انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ہو یا انڈسٹری کے حوالے سے ہو، تو گورنمنٹ نے اپنا رول بہت، جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی زیادہ پلے کیا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کو ریکور ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ پاکستان کی اکنامی میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے اور جلدی ریکور ہو جائے گی۔ اور 2% جب کمی آتی ہے شرح سود میں تو میرا تخمینہ یہ ہے کہ حکومت کو تقریباً 400 سے 500 ارب روپیہ اضافی وسائل اس کے پاس آ جائیں گے، جو وہ ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کی معیشت کو سہارا دینے سے۔ دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو لونز لے رکھے ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بوجھ جو ہے سالانہ کا کم ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں کمی سے صنعتوں کے لیے قرض کی لاگت کم ہونے سے صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھنے اور بے روزگاری میں اضافہ روکنے میں مدد ملے گی۔ G20 ممالک نے پاکستان سمیت 76 ترقی پذیر ممالک کے $40 ارب کے قرض ایک سال کے لیے منجمد کر دیے۔ IMF کے مطابق قرضے منجمد کرنے کا مقصد ترقی پذیر ممالک کو صحت اور معاشی مسائل میں مدد دینا ہے۔ بڑی معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ G20 نے ترقی پذیر ممالک کے ذمے واجب الادا $40 ارب کے قرضے ایک سال کے لیے منجمد کر دیے۔ پاکستان سمیت 76 ممالک اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ IMF کے مطابق قرضے منجمد کرنے کا مقصد کرونا وائرس سے متاثر ترقی پذیر ممالک کو صحت اور معاشی مسائل سے نمٹنے میں مدد دینا ہے۔ IMF کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کو رواں سال $40 ارب کے قرضے واپس کرنے ہیں، جن میں سے $20 ارب کے قرضے سعودی عرب منجمد کرے گا۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ترقی پذیر ممالک نے قرضے منجمد کرنے کی درخواست کی تھی۔
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को कर्जों में रियायत का ऐलान 1 मई से होगा। माहिरीन का ख्याल है कि आलमी इक़्तिसादियात में 30% कमी हुई है। वज़ीर आज़म की अपील को फौरन सराहा और की हिमायत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल G20 के इजलास ने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका इजरा हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस रिलीफ से पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर्स के कर्जों की अदायगी मौखर होगी, जिनमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। बंद सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान में सोने की मुजव्वज़ा कीमत 1,01,000 रुपये हो गई, जो पाकिस्तान में नई बुलंद तरीन कीमत है। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में सराफा मार्केट्स तो बंद हैं, ताहम सराफा एसोसिएशन के मुताबिक अगर मार्केट खुली होती तो पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,01,000 रुपए होती। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत ट्रेडिंग के दौरान $14 के इजाफे से $1,738 से तजावुज कर गई। 10 ग्राम सोना 86,591 रुपए में मिलता, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 79,375 रुपए फी 10 ग्राम होती। एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में मार्केट खुलने के दिन आलमी मार्केट के उस रोज के रेट के तनासुब से ही इस रोज का रेट तय किया जाता है। पावर सेक्टर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों के बायस कौमी खजाने को 13 साल में 4,802 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। अवैस कियानी की रिपोर्ट देखते हैं। पावर सेक्टर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट ने साबका हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलत पॉलिसियों और इकदामात के बायस कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। पावर सेक्टर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के नरखों में कमी के लिए हंगामी इकदामात की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को शामिल किया जाए। आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जेर तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी की जाए। 25 साल वाले प्लांट से बिजली खरीदारी बंद की जाए, जबकि इलेक्ट्रिक को 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने से रोका जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। 16 IPPs ने 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। ज्यादातर IPPs के पेबैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दरमियान रहा। IPPs लॉबी इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक होने से रोकने के लिए तगोदो करने लगी। दूसरी तरफ वजीर आजम की हिदायत पर 32 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अफराद को 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, क्या कहा गया है इस नए ऑर्डिनेंस में? जी, मुजवज़ा जो ऑर्डिनेंस है उसका इतलाक सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हदूद में होगा और उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अफराद को 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी से फ़ायदा हासिल करने वाले असल मालिकान को सजा दी जाएगी। इसमें चीनी, चाय, दूध, पाउडर और इस तरह से शीर को जो बच्चों की खुराक है वो तमाम तर चीज़ें जो है जरूरियात जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन जो अहम बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही करने वाले या इस बारे मुसद्दिक़ा इतला देने वाले अफराद को जब्त की जाने वाली अशिया की मार्केट का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। ये जो मुजवज़ा ऑर्डिनेंस है इसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाएगी और मेंबरान वफाकी काबीना के मेंबरान को ये जो ऑर्डिनेंस है वो भिजवा दिया गया है और इसमें उसके बाद सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में 6 माह में कितनी अमवात हुई हैं, 24 न्यूज़ ने डाटा हासिल कर लिया है। KMC डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,849 अफराद जनवरी में दफनाए गए। रवा माह सबसे कम 766 अफराद को दफनाया गया। बल्दिया उज़्मा की डॉक्टर सलमा कौसर ने भी हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं। कराची में बढ़ती हुई अमवात के हवाले से खौफ व हिरास फैलाया गया, लेकिन आदादो शुमार ने सब बाजी कर दिया।
कराची में 6 माह में कितनी अमवात हुई, कराची के कब्रिस्तानों में कितनी मैयतें दफनाई गईं। 24 न्यूज़ ने डेटा हासिल कर लिया। 6 माह में अब तक 13,993 अफराद को 31 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में सपुर्द खाक किया गया। KMC डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,849 अफराद जनवरी में दफनाए गए, फरवरी में 2,278, मार्च में 1,978, जबकि रवा माह सबसे कम 700 अफराद को दफनाया गया। आदाद शुमार बताते हैं कि शरह अमवात में कमी आई है। कराची में कोरोना से जामहक अफराद के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अब तक 14 अफराद सपुर्द खाक किए गए हैं। दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर का कहना है कि 1 माह 6 रोज के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 350 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इनमें से कोई भी हलाकत कोरोना से नहीं हुई। हमारी जो ये डेथ्स का वो है वो 361 हुई हैं डेथ्स अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में। और अगर आप रूटीन का डेटा भी देखें, क्योंकि मैंने प्रीवियस अपना डेटा भी मैं चेक करती रहती हूँ, तो तकरीबन मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ मेरा अपना जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो है मेरे को रिगार्डिंग माई हॉस्पिटल के मेरे यहाँ कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई है मेरे हॉस्पिटल से। कराची में ये खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई कि सांस की बीमारियों से अमवात में इजाफा हुआ है। ये खदशा जाहिर किया गया कि मरने वालों को शायद कोरोना की शिकायत थी, लेकिन आदाद शुमार ने न सिर्फ इसकी तरदीद कर दी बल्कि ये वाज़े कर दिया कि कराची में गुज़श्ता 6 माह के दौरान शरह अमवात में कमी हुई है। एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम देने का अमल जारी है, मगर नाकिस इंतजामात में बेहतरी नहीं लाई जा सकी। कहीं मुस्तहकीन की तस्लील की गई, कहीं नौसरबाज सरगर्म रहे तो कहीं किसी को इमदाद ही ना मिल सकी। वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। नाकिस इंतजामात और हिकमत अमली ने मुस्तहकीन के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी तरीक़ाकार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जो है वो बहुत देर से बैठे हैं और प्रोसेस जो है निस्बतन अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे 2-3 मुख्तलिफ तरीके के किस तरीके से इसको स्पीड अप किया जा सकता है। जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी बुनियादी वजह जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, तो उसका हम कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं। कफालत मराकज़ में लूट मार करने वाले बेलगाम हो गए। फैसलाबाद में 10 मुल्जिमान ने कागजात में जालसाजी करके रकम वसूल कर दी। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने झंग में खातून की पूरी रकम न देने वाले 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। चूनिया में फ्रॉड करने वाला शख्स पकड़ा गया। सुफियान नामी मुल्जिम ने खातून को 21,000 के बजाय 12,000 रुपए दिए। तौंसा शरीफ में नौसरबाज ग्रुप पकड़ा गया। मुल्जिम मुस्तहकीन से अंगूठा लगवाकर रकम नहीं देते थे। लिया में भी सूरत हाल न बदली। रकम से कटौती करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सनावा में 1,000 की कटौती करने वाला रिटेलर पकड़ा गया। लॉकडाउन में नरमी का फायदा उठाकर वो कारोबार भी खुलने लगे जिन्हें बंद रखने का हुक्म है। इंतजामिया का कहना है कि अहकामात पर अमल कराएंगे। सड़क पर रश देखकर उस्मान बुज़ार परेशान हो गए। उधर वज़ीर आला सिंध ने मजीद सख्ती का हुक्म दे दिया, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि लोग घरों में रहें। वफाकी हुकूमत की लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार खुलने लगा। इंतजामिया के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी जिनकी इजाज़त दी गई है। शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सक्खर कमिश्नर ऑफिस में कोरोना से मुतालिक इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि लॉकडाउन के असरात से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने लाहौर और अतराफ का फ़ज़ाई दौरा किया और लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दामात का जायज़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम ने भी खबरदार कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन से वायरस का फैलाव कम हुआ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा टल गया। अवाम ने एहतियात ना की तो महीने के अंदर 80,000 केसेस हो जाएंगे। पहली चीज तो ये मैसेज अवाम तक और वो सारे लोग जिनको तकलीफ पहुंच रही है, माशी तौर पे तकलीफ पहुंच रही है, ये पहुंचना जरूरी है कि हमें इस वायरस तक के साथ रहना पड़ेगा। उधर बलोचिस्तान में कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने अवाम से समाजी राब्तों और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आने से गुरेज करने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा पर 2 करोड़ मास्क स्मगल करने और टाइफाइड वैक्सीन की दरामद में 2.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के
लिखे गए खत में कहा गया है कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कोरोना वायरस में नाअहली से मौजूदा हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा मिस्र में WHO के कंट्री हेड कभी भी नहीं रहे। जफर मिर्जा की जानिब से PMDC को PMC से बदलने की कोशिश की गई। खत में इल्जाम आयद किया गया है कि जफर मिर्जा की जानिब से 2 करोड़ मास्क और हिफाजती सामान स्मगल किया गया। जफर मिर्जा की जानिब से WHO की मंजूरी और टेस्ट के बगैर 3 बिलियन टाइफाइड वैक्सीन इंडिया से दरामद की गयी। जफर मिर्जा की जानिब से करप्शन में मुलविस अख्तर हुसैन और फिर आसिम रऊफ को ड्रैब का CEO लगाया गया। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि जफर मिर्जा ने अपने दोस्त अजहर हुसैन को माहाना 8.5 लाख तनख्वाह पर मेंबर ड्रग कोर्ट इस्लामाबाद तैनात किया। खत में जफर मिर्जा के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की इस्तदा की गई है। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी की वजारतों और ओहदों से आंख मचोली जारी है। सैफरान और इंसदाद मनशियात के वज़ीर मुमलिकत को अब चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाने की तैयारी है। फिलहाल उन्हें कश्मीर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारतों और ओहदों का रद्दोबदल मामूल है। ताहम रुकन कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी ने ये मदोजजर कुछ ज्यादा ही देखा है। चंद रोज कबल वजीर आजम ने वजीर पार्लिमानी अमूर आजम सवाती का कलमदान तब्दील करके उन्हें वजीर इंसदाद मंशियात का ओहदा तफवीज किया और शहरियार आफरीदी से वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात का इजाफी कलमदान वापस ले लिया। ताहम एक रोज बाद ही वजीर मुमलिकत बराए सैफरान को वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात का इजाफी पोर्टफोलियो वापस दे दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के तकर्रर से कबल शहरियार आफरीदी को वजीर मुमलिकत बराए दाखिला भी बनाया गया था। ताहम विफाकी वजीर की तैनाती के बाद शहरियार आफरीदी से ये ओहदा भी ले लिया गया था। अब विफाकी हुकूमत ने शहरियार आफरीदी को चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है और चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम का इस्तीफा मंजूर करते हुए शहरियार आफरीदी को उनकी जगह कश्मीर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। बाबर शहजाद तुर्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और अहम खबर है कि लॉकडाउन के बायस निजी स्कूल्स की फीसों में 20% रियायत का मामला सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में रियायत का सिंध हुकूमत का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने महकमा तालीम और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत को 22 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। जफर सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जफर सोमरो बताएगा अदालत के इस बारे में क्या रिमार्क्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में जो है निजी स्कूल 20% जो फीस उसमें रियायत करने के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई, जिसमें अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जो है सिंध हुकूमत का जो नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए सिंध हुकूमत और महकमा तालीम से 22 जो है अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुज़र का ये कहना था कि जो हुक्म दिया गया है वो सिर्फ एक तरफा था, हमारे जो है दलाल नहीं सुने गए, सिर्फ अपनी बात की और हमारे स्कूल जो है इंतजाम का कोई इसको ख्याल नहीं आया, जिस पर जो है अदालत ने सिंध हुकूमत का नोटिस था। ठीक है जफर सोमरो, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कमर जमान कायरा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि सिंध की तारीफ हुई तो वजीर आजम को आग लग गई, काम की बजाय अपोजिशन को गालियां दी जा रही हैं। DG खान और मुल्तान में बदनज़मी से तबाही फैली, वजीर आजम सिंध हुकूमत के पीछे पड़े हैं। मिनिस्टर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा मुल्क और आलमी इदारे भी उनकी कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसके फौरी बाद हुकूमती तर्जमानों ने वो जो नोटिफाइड हैं वो भी और जो नोटिफाइड नहीं है वो भी, जिनका कोई वजूद नहीं है किसी तरह, उन सब ने एक यलगार कर दी और इंतहाई तल्ख लहजों में बदतमीजी के हद तक जाते हुए उन्होंने CM सिंध के उस जज्बे को खराब करने की कोशिश की। करंटीना का जो मरकज पहले तफ्तान में बनाया गया, फौरी तौर पे सारे रिसोर्सेज दे फेडरल गवर्नमेंट उसको फौरी तौर पे फंड देती। वहाँ लोग है ना, कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है जो बंद करनी है आप। अगर आप लोगों को वहाँ रखेंगे जहाँ गर्द उड़ रही है, ना खाने की जगह, ना हाजात की जगह, ना कोई माहौल है, तो लोग तंग पड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर तामीरात और काबीना कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इकबाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्ताफ़ी वज़रा का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मान रही। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया, लेकिन 18 ग्रेड के एक अफसर ने हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया। फारिग होकर मैं CM साहब के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैंने CM साहब को फ़ोन किया और इस्तीफ़ा मैं अपने साथ जेब में लेके आया हूँ, उनको दे दूँगा कि मैं इन हालात में और इस तरह की जो हमारे साथ सलूक होता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और वो भी 18 ग्रेड की सेक्रेटरी की तरफ से, तो इन हालात में मैं वैसे के वज़ीर का लिए तैयार नहीं हूँ। बैरून ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों ने डबल अखराजात वसूल किए जाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। बैरून मुल्क से आने वालों को खाने पीने समेत रिहाइश के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है।
ममालिक से आए पाकिस्तानियों ने इल्जाम आयद किया है कि पहले सफारत खाने की जानिब से रकम ली गई, अब यहाँ भी डिमांड की जा रही है। मुसाफिरों के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद में 400 लोगों को करंटीना किया गया है, जबकि इन लोगों को खाने पीने समेत रहाइश की भी शदीद मुश्किलात हैं। सर हम बड़े परेशान हैं, कल के हम आए हुए हैं, कल रात से लेके अब ये टाइम हो गया है, आज 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, ना हमको रिहाइश मिल रही है ना हमको खाने का कुछ मिल रहा है। हमारे साथ औरतें भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। बार बार हमें कहा जा रहा है 3000 पर नाइट दें, 8 दिन का एडवांस दें, 24,000 आपके टेस्ट के भी हमसे ये शायद 8-10 हजार मांग लेंगे। ब्रूने ममालिक से आए और करंटीना सेंटर में मौजूद शहरियों के मुताबिक 24 घंटे पूरे हो गए, लेकिन अभी तक चेकअप नहीं हुए। इन्होंने हमसे जो है बसों का किराया भी लिया और क्या नाम है रेस्टोरेंट पे लेके ये कहते हैं पासपोर्ट जमा करवाएं और 3000 रुपया फ्री नाइट जो है ना कि आप जमा करवाएंगे तो 7 दिन लगेंगे। लेकिन सर बात यह है कि हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक जो लोग होटल में रहेंगे वो अखराजात खुद अदा करेंगे। गौहर महसूद, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची में कोरोना से जंग में शहरी भी मैदान में आ गए। एक शहरी ने नाकों पर एहलकारों के हाथ धुलवाने के लिए पानी के ड्रम लगवा दिए। इसी बारे में मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। ऑफ कराची के सदर बासित मुंडिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम नाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के हाथ धोने के लिए पानी के ड्रम लगा दिए और सैनिटाइजर तकसीम किए। इस मौके पर इनका कहना था कि हमारे जवान हमारी हिफाजत के लिए रोड पे खड़े हैं। हमारे जो जवान हमारी हिफाजत पे खड़े हैं, इनकी भी सेफ्टी इंश्योर की जाए। तो आज हम लोगों ने भी इनकी इस काम में हाथ बटाया है इनका, और हम डिस्ट्रिक्ट साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जवान जो अपनी जान के परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत के लिए रोड पे खड़े हैं, हम भी उनके साथ इस वक्त में उनके साथ शामिल हैं। ASP क्लिफ्टन जाहिदा परवीन का इसी हवाले से कहना था, तमाम से यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल कम से कम जब इमरजेंसी की सूरत में निकलें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और नाके जितने लगाए हैं ये इन्हीं की हिफाजत और इन्हीं की हमारी तरफ से एक केयर का मैसेज है। जबकि SHO के लेफ्टिनेंट पीर शब्बीर हैदर ने इस मौके पर कहा कि पुलिस खुद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करती है और शहरियों को भी आगाही देती है। पुलिस रोडों पे खड़ी है, ये इसलिए खड़ी है कि दूसरे आदमी सेफ हो सके, और जब तक ये खुद सेफ नहीं होंगे तो दूसरे कैसे सेफ होंगे। इसलिए हमने पुलिस को कहा है कि बार बार अपने हाथ धोएं। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए अगर शहरी इसी तरह हुकूमत का साथ दें तो वबा पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन रिजवान खालिद के हमरा मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़ कराची। टेलीनॉर भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश है और इसने अब तक 1 अरब 60 करोड़ की रकम इमदादी सर्विसेज और माली इमदाद की सूरत में मुहैया की है। इस सिलसिले में CEO टेलीनॉर इरफान वहाब खान का कहना है कि उनकी कंपनी की जानिब से इमदाद की फराहमी का मकसद इस महाज पर सफ़े अव्वल में लड़ने वालों की मदद करना है। आज कोरोना की वबा की वजह से जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को मुश्किलात का सामना है, टेलीनॉर उनसे बाखूबी आगाह है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम 1 अरब 60 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कैश कंपोनेंट कैश कंट्रीब्यूशन और दूसरी इन काइंड कंट्रीब्यूशन। अभी तक जब से वबा हमारे मुल्क में आई, हमारी कोशिश ये थी कि लॉकडाउन के दौरान भी हम अपने नेटवर्क की सर्विसेज जो हैं मुल्क के कोने कोने तक सीमलेस तरीके से आवाम तक पहुंचा सकें। उसके साथ साथ हमारा फोकस रहा है कि कोरोना से बचाव की तदाबीर जो हैं उसकी मालूमात भी आवाम तक पहुंचाएं। जहां तक कैश कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फ्रंट लाइन पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट वर्कर्स, उन तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए हम हिलाल अहमर और लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस का मिलकर इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में टेलीनॉर साथ है। मुल्तान में मौसम बहार के रंग बिखर गए। मुख्तलिफ रंगों और अकसाम के फूलों ने माहौल को खुशगवार बना दिया। सुहैरा तारिक की रिपोर्ट देखते हैं। बहार के मौसम में हर जानिब फूलों की बहार आ गई। सैकड़ों अकसाम के फूलों ने माहौल को अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिए। सारा साल फूलों की देखभाल करने वाले बागबान भी पार्क में फूलों की खूबसूरती से खुश नजर आने लगे। हर तरफ फूल ही फूल है, ट्रेनम, गेंदा, कजली, फ्लक्स, वो सारी वैरायटियाँ लगाई हुई हैं हमने। पार्क के अंदर बहुत आला नस्ल के फूल लगाए हुए हैं, हर किस्म के फूल हैं, एंट्रेनियम है, गुलाब है, नाफरमान है, बहुत सारी इकसाम लगाई हुई हैं। पार्क्स और सड़क किनारे करीने से सजाए फूलों की खूबसूरती देखने वालों को मुतासिर कर रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कैंसर में मुब्तला अदाकारा नादिया जमील की कामयाब सर्जरी हो गई।
पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा नादिया जमील की कामयाब सर्जरी हो गई। अदाकारा ने ट्विटर पर अपनी एक मुस्कुराती तस्वीर शेयर की और लिखा कि कामयाब सर्जरी हो गई, अब सेहतयाब हो रही हूँ। अदाकारा ने लिखा कि 20 को पता चलेगा कि कैंसर कितना फैल चुका है, तब से मजीद इलाज शुरू होगा। नादिया जमील ने कैंसर से लड़ने वाले तमाम मरीजों के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं मुस्बत रहूं और जो भी अल्लाह को मंजूर हो उस पर कायम रहूं। तू गोरों की बात समझ लेती थी? ना मैं उनकी बात समझती थी ना वो मेरी समझते थे। अच्छा ही था, जब ज्यादा छेड़ाछाड़ी करते तो मैं अपनी जुबान में उनको गालियां देने लग जाती। बड़े प्यार से कहती, साहब आप सब उल्लू का पठाओ। नादिया जमील की कामयाब सर्जरी का सुनकर उनके चाहने वालों ने उन्हें जल्द सेहतयाब होने की दुआएं भी दी हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही।